Well, gentlemen, welcome to the second phase of online teaching classes as directed by Higher Education Department, Punjab. Here I am Sharif Zaid, Assistant Professor of English from Government Postgraduate College at Tug. Dear students, we were discussing about the memories coming across into the mind of Mr. Chipping in his practical life. We were in chapter 19 and now switching over to the text once again. We were discussing that he had won by seniority and ripeness. He had won an uncharted no man's land of privilege. And because of his seniority, he had acquired the right to those gentle eccentricities that so often attack schoolmasters and parsons. For example, there had been any difference of opinion. अगर उनमें कोई इख्तलाफ राय आ भी जाता तो उनके लिए कोर्ट ऑफ अपील यही मिस्टर चिप्स हुआ करते थे बाय डेंट ऑफ सीनियरिटी. He wore his gown till it was almost too tattered to hold together. Too tattered means torn out, फट जाना. ये उसकी हैबिट थी कि वो गाउन नया ख़रीदते और तब तक पहना करते जब तक के फट न जाता. And when he stood on the wooden bench by big hall steps to take call over, it was his style of taking attendance in this way, standing on the wooden bench which was laid near the big hall. It was with an air of mystic abandonment to ritual. So it has become a kind of ritual in that school, and his style is now being described. उसका अंदाज कुछ यूँ था कि he held the school list, students list हाथ में पकड़ता. अ लॉन्ग शीट कर्लिंग ओवर अ बोर्ड, लंबी शीट हुआ करती थी. एंड ईच बॉय एज ही पास्ट स्पोक हिज ओन नेम फॉर चिप्स टू वेरीफाई एंड देन टिक ऑफ ऑन द लिस्ट. स्टूडेंट्स आया करते, अपना नाम पुकारते, वो लिस्ट के ऊपर चेक करके टिक लगा देता. ये उसके इस अंदाज को स्टूडेंट्स फिर मज़ाहिया अंदाज में नकल भी करते थे. दैट वेरीफाइंग ग्लास वॉज एन ईजी एंड फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माई मेकरी थ्रू आउट द स्कूल. स्टूडेंट्स अपने सर के अंदाज में फिर तमाम स्टूडेंट्स को खड़ा करके सेम अंदाज में अटेंडेंस लगाते जैसा कि वो देखा करता था. स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल स्लिपिंग डाउन द नोज, उसके स्पेक्टिकल्स थोड़ा सा नीचे आ जाते. देवर ऑफ स्टील रिम्ड. आईब्रोज लिफ्टेड, ही यूज टू लिफ्ट हिज आईब्रोज. स्टूडेंट्स उसी अंदाज में आईब्रोज लिफ्ट करेंगे. और वन अ लिटिल हायर देन अदर, अ गेज हाफ रैप्ड हाफ इक्विजिकल. हाफ रैप्ड मीन्स absorbed. He used to concentrate, but his manner of concentration was that of humorous, मज़ाहिया से अंदाज में. And on windy days, with gown and white hair, the school list fluttering in uproarious confusion. Suppose there had been days when wind was blowing. तो ऐसे दिनों में जब तेज़ हवाएं चला करती तो ना सिर्फ उसका गाउन फ्लटरिंग कर रहा होता, उसके वाइट हेयर भी उड़ रहे होते, स्कूल लिस्ट भी फ्लटरिंग कर रही होती. द होल थिंग बिकेम अ कॉमिक टर्न सैंडविच्ड बिटवीन आफ्टरनून गेम्स एंड द रिटर्न टू क्लासेस. और लोग इसको एंजॉय किया करते कि लो जी आज तो अटेंडेंस का मज़ा आएगा. All these are memories now sticking to his mind. Some of those names in little snatches of a chorus group of singer. कुछ नाम तो वो ऐसे पढ़ा करता जैसा सिंगिंग के अंदाज में उसे ज़ुबानी याद हो जाते. Recurred to him ever afterwards without any effort of memory, reoccurring to his mind. उसके ज़हन में बार बार ये आते. फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ समझिए कि उसको एक लेसन था जो याद हो गया था. एंसवर्थ, एटवुड, एवनामोर. Then from A switching to B, so Babcock, Baggs, Bernard. So all of these are the names of the students who have been there in the
at that time when he was teaching. So when this ends, ba sound ends, then another one means switching over to another chorus जो उसको ज़बानी याद थे. Unslave Wales wow sound starts when wow ends at the web, then yet another that comprised, as he used to tell his fourth form Latinist. So he used to teach fourth class, and there he used to teach Latin language. So Latin language के hexameter को बताते हुए an excellent example of a hexameter, वो इतने सारे लैटन एल से शुरू होने वाले नाम लिया करता था. लॉन्सेस्टर, लेटॉन, लेमेयर, लेटन, बॉट्सवर्थ, मैग्निगॉल एंड मैन्सफील्ड. All these are the names of the boys of that school. Where had they all gone to? He often pondered. He used to think it upon. वो अक्सर सोचा करता, कहाँ गए ये सारे बच्चे? Those threads he had once held together. ये सारे combined मेरे हाथों में. And how far had they scattered? अब वो कहाँ कहाँ तक बिखर गए होंगे. Some to break, others to weave into unknown patterns. कुछ टूट फूट मीन्स पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ की दूसरी फैमिलीज़ में, दूसरे कंट्रीज़ में मर्जिंग हो गई. द स्ट्रेंज रैंडमनेस ऑफ द वर्ल्ड beguiled him. into this random world they have now merged themselves. इस दुनिया में कहाँ वो खो गए. दैट रेंडमनेस विच नेवर वुड, सो लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्टेड, गिव मीनिंग टू दीज कोरसेस अगेन. यानी जब तक वो मेरी मेमोरी में एज अ स्टूडेंट रहेंगे तो वो यूनाइटेड रहेंगे. जब इंडिविजुअली एक एक इलेक्ट्रॉन बन के प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाएंगे तो वो इस दुनिया में मर्ज हो जाएंगे. एंड बिहाइंड ब्रूक फील्ड एज वन में ग्लिम्स अ माउंटेन बिहाइंड अनदर माउंटेन. This we have studied in the second chapter about the building, about that village of Brookfield, after which this school was named. So अगर आप ब्रूकफील्ड की बैक पे देखें तो आपको सीरीज ऑफ माउंटेन्स की एक झलक दिखाई देती है. वो कब? when the mist clears, जब फॉग ना हो. He saw the world of change and conflict. इतना ही दूर तक उसने देखा तो ये दुनिया किस कदर बदल गई. एंड ही सॉ इट मोर देन ही रियलाइज्ड. ही सॉ इट विद द रिमेंबर्ड आइज ऑफ कैथी. और जब उसकी मिसेस की यादें उसे आती, शी हैड नॉट बीन एबल टू बी विथ हिम ऑल हर माइंड. अभी तो उसने सब कुछ इसको नहीं सिखाया था, इसके बावजूद स्टिल लेस द ब्रिलियंस ऑफ इट, इसका माइंड जो था वो ब्रिलियंट माइंड हो गया था. बट शी हैड लेफ्ट हिम विद द कॉमनेस एंड अ पॉइज दैट अकर्ड वेल. लेकिन उसने इसको एक बैलेंस्ड शख्सियत में बदल दिया विद हिज ओन इनवर्ड इमोशंस, अपने भी जज्बात के एतबार से. It was typical of him that he did not share the general jingo bitterness against the Boers. Boers is a Dutch family. तो वो ये भी एक ख़ास उसकी हैबिट थी कि वो अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर किया करता था एक्सेप्ट दैट ऑफ हिज ओन स्पाउस. नॉट दैट ही वॉज अ प्रो बोअर, ना ही ये कि वो उनसे मोहब्बत करता था. ही वॉज फॉर टू ट्रेडिशनल फॉर दैट. वो तो ट्रेडिशनल किस्म का बंदा था. एंड ही डिसलाइक द काइंड ऑफ पीपल हु वर प्रो बोअर्स. और वो ये कहता था नाइदर वी शुड बी अगेंस्ट समवन जस्ट फॉर नथिंग. But still it did cross his mind at times that the Boers were engaged in a struggle. तो चूँकि वो अपनी इंडिपेंडेंस की जंग लड़ रहे थे तो इसको तरस ज़रूर आता था कि ये लोग उस स्ट्रगल में हैं. वो वाली स्ट्रगल दैट हैड अ क्यूरियस सिमिलैरिटी टू दोज ऑफ सर्टन इंग्लिश हिस्ट्री बुक हीरोज़. हमारे हीरोज़ ने भी तो स्ट्रगल की है अपनी आज़ादी की खातिर. Hereward the Wake, for instance, or Cracticus. He once tried to shock his fifth form by suggesting this. एक दफ़ा पढ़ाते पढ़ाते उसने अपनी क्लास में ये भी कह दिया था,
बट दे ओनली थाट इट वॉज वन ऑफ हिज लिटल जोक्स कि सर हैं तो सर ये जोक्स हमारे साथ करते रहते हैं खुशगवार अंदाज में, इसलिए ये बात कह गए हैं. हाउ एवर हेरेटिकल ही माइट बी अबाउट द बर्ड्स, ही वॉज ऑर्थोडॉक्स अबाउट मिस्टर लैलॉर्ड जॉर्ज एंड द फेमस बजट. सो ही हैड हिज ओन कंजर्वेटिव व्यूज़, ऑर्थोडॉक्स जो अपने अकीदा पे कायम रहे. He did not care for either of them, वो नहीं परवाह करता था. And when years later, Mr. Lord George LG nickname came as the guest of honor to a Brookfield speech. एक दफ़ा वो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे आया तो ब्रूकफील्ड स्पीच डे पे चिप said on being presented to him, Mr. Lord George, I am nearly old enough to remember you as a young man. तो उसका नाम लेके चिप्स कहते हैं कि मुझे नहीं याद, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ. आई कॉन्फेस दैट यू सीम टू मी टू हैव इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील, लेकिन माशाल्लाह आप बहुत तरक्की कर गए हो. यानी आप छोटे से थे और कहाँ कितने बड़े ओहदे पे चले गए हो कि आज एज अ चीफ गेस्ट आपको एक ऑनर मिली है. The head standing with them was rather aghast. ये इतनी फ्री कन्वर्सेशन चीफ गेस्ट के साथ सुनकर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन थोड़ा सैम से गए, डर गए. बट एल जी लाफ्ड हार्टली. वो जो मिस्टर लैलॉर्ड जॉर्ज थे वो इस बात पे खुश हुए. एंड टॉक टू चिप्स मोर देन टू एनीवन एल्स ड्यूरिंग द सेरेमोनियल दैट फॉलोड. जो बाद का टाइम था वो उन्होंने मिस्टर चिपिंग के साथ ज़्यादा गुजारा बाकी लोगों की निस्बत, इसलिए जस्ट लाइक चिप्स वाज कमेंटेड आफ्टरवर्ड्स. और बाद में लोगों ने कहा यार इस तरह इंसान को घुल मिल के रहना चाहिए, सोशल हो जाना चाहिए. ही गेट्स अवे विद इट आई सपोज एट दैट एज. एनीथिंग यू से टू एनीबॉडी इज़ ऑल राइट. चूँकि ये सीनियर हैं लिहाजा इस एज में ये जिस बंदे को जो बात कह दें हर बंदा उसको अच्छे अंदाज में लेता है, मीन्स कि वो माइंड नहीं करता. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे. वी शैल स्टडी चैप्टर 10 इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.